السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے حملوں نے شہریوں کی سلامتی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اس اب آخر کیا معاملہ ہے، تفصیل بتائیں گے ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز، جو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں۔ جی بالکل، تحصیل شالیمار کے علاقہ ریلوے کالونی انجن شیڈ میں آوارہ کتوں نے نماز پڑھ کر آنے والے نمازیوں کو کاٹ لیا، جن پر ایک بچہ بھی تھا جو شدید زخمی ہوا۔ لاہور کے رہائشی مہر اکمل صدر ریلوے پریم یونین سگنل ورکشاپ زون و صدر سنی تحریک شالیمار ٹاؤن لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا سے اپیل کی ہے کہ شالیمار ٹاؤن لاہور اور ٹی ایم او کے عملہ کو ہدایت جاری کی جائے تاکہ آوارہ کتوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ریلوے کالونی میں آوارہ کتوں نے مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آنے والے نمازیوں کو کئی بار کاٹ لیا اور ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مہر اکمل نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی آوارہ کتوں نے کاٹا، جس سے میرا بیٹا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ شالیمار ٹاؤن لاہور اور ٹی ایم او آفس میں اطلاع دی تو کوئی متعلقہ ٹیم نے رابطہ نہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر لاہور سے اپیل ہے کہ شہر میں آوارہ کتوں کا خاتمہ کیا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں۔ جی پنجاب پولیس نے اپنے شہداء کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے عزم کو برقرار رکھتے ہوئے شہید کانسٹیبل بیرم رام کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 روپے مالیت کا گھر فراہم کر دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق اہل خانہ کی پسند کے مطابق رحیم یار خان کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خریدا گیا گھر، جس کے لیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی کاوش پر حکومت پنجاب نے فنڈز جاری کیے۔ شہید کانسٹیبل بیرم رام 2024 میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہید کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس اپنے 1700 سے زائد شہداء اور ان کے اہل خانہ کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ واگا زون میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی قابل تحسین قرار دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں اینا سعید کی رپورٹ میں۔ واقع زون میں بنیادی مراکز صحت، ڈسپنسری اور فیلڈ سٹاف کی کارکردگی میں واضح بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، جس پر علاقہ مکینوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈی ڈی او ہیلتھ واقع زون کی ہدایت پر صفائی، ویکسینیشن، ماں اور بچے کی صحت، ڈینگی اور دیگر موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے گئے ہیں۔ فیلڈ ٹیمیں باقاعدگی سے علاقوں کے دورے کر رہی ہیں، جبکہ عوام کو صحت کے متعلق آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بروقت کارروائیاں نہ صرف بیماریوں کی روک تھام کے لیے ممکن ہوئی ہیں، بلکہ سرکاری صحت کے اداروں پر عوام کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ڈی ڈی او ہیلتھ واگا زون اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سہراتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہی تسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ کیمرہ مین سید عباس کے ساتھ خینا سعید، اسپیشل ٹی وی لاہور۔ سی سی پی آفس کمپلینٹ سیل نے رواں سال موثر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 11,086 درخواستوں میں سے 10,642 شکایات نمٹا دی، جبکہ باقی پر کارروائی جاری ہے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ پورٹل پر موصول تمام 81 درخواستیں حل کر دی گئی ہیں۔ بذریعہ ڈاک موصول زیادہ تر درخواستوں پر بھی بروقت کارروائی کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیقی خمیانہ نے کہا کہ کمپلینٹ سیل عوامی شکایات کے فوری اور بلا امتیاز حل کے لیے متحرک ہیں اور بزرگوں، خواتین اور معذور افراد کی درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جا رہا ہے، جو عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی علامت ہے۔ اچھرا پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے 2 رکنی ڈکیت اور سنیچر گروہ گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او اچھرا نے ٹیم کے ہمراہ سپر مارکیٹ پارک سے ملزمان کو ٹریس کیا، جو گزشتہ ماہ خاتون سے گن پوائنٹ پر واردات اور مختلف شاہراہوں پر سنیچنگ میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے چھینی گئی نقدی، 3 موبائل فونز، 2 پسٹل اور چوری شدہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی، جبکہ اعظم اور فوجی اور عادل کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کلین لاہور مشن اور لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد کے تحت ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے آج صبح تحصیل راوی کا دورہ کر کے صفائی، سیوریج اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پرنسپل LWMC اور واسا حکام نے بریفنگ دی، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی ملبہ فوری ہٹانے، سیوریج لائنز کی ڈی سیلٹنگ تیز کرنے، مین ہولز کو کور کرنے اور
जारी स्कीमें मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी। नीचावतनी के नवाही गांव 10 में 5वां ऑल पाकिस्तान T10 क्रिकेट मेला सज गया है। क्रिकेट मेले में मुल्क भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। ये मेला नौजवान टैलेंट को उभरने और खेलों के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। फतेह टीम के लिए 1.5 लाख रुपए, रनर अप टीम के लिए 50,000 रुपए नकद इनामात मुकर्रर किए गए हैं। ये टूर्नामेंट इस लिहाज से जिस लिहाज से ये चल रहा है, ये इसका इस साल 5वां सीज़न है। ये हर साल हम यहाँ पे करवाते हैं। हमारी टीम जो ये अरेंज करती है, जिसको हम कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि वर्कर जो काम करते हैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं। कमर साहब, डॉक्टर इरफान साहब, इनकी पूरी टीम है ये, और ये छोटे भाइयों की तरह हैं। इन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया और ये बड़ी कामयाबी से इसको लेके चल रहे हैं। हमारे टूर्नामेंट लास्ट ईयर ये आल पंजाब था, इस दफ़ा हमने इसको आल पाकिस्तान पे किया है। और मैं समझता हूँ कि इस इलाके की खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा एक टीम कोयटे से भी आई है और इंशाल्लाह वो इसमें पार्टी, और ये इसकी कामयाबी का सबूत है कि कोयटा से टीम रिक्वेस्ट करके उन्होंने यहाँ पे शमूलियत इख्तियार की है। हमारे टूर्नामेंट को जो साबका हिस्ट्री है, यहाँ पे मोहम्मद जाहिद पाकिस्तान खेल चुके हैं, फास्ट बॉलर थे गग्गो के, वो यहाँ पे आ चुके हैं। एक रेहान बहुत अच्छा बॉलर, वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास खेला है, वो भी लास्ट ईयर यहाँ पे खेल के गया था। सलीम अलाई साहब हर दफ़ा, हमने साहिवाल की शान है, वो बड़ा नाम है, हर दफ़ा वो हमारे टूर्नामेंट में लाजमी शिरकत करते हैं। और यहाँ पे हमारे गांव का एक लड़का जो फर्स्ट क्लास खेला है, इरफान है, उस्मान लियाकत है, और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन बुनियाद ये है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, गेम्स को प्रमोट किया जाए। और ये ग्राउंड जो है, मैं मीडिया के तवस्सुत से ये बात करना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है ना जी, ये हमें 35 से 40 हज़ार रुपये पानी के लगते हैं। एक माह में एक दफ़ा पानी ज़रूर लगाते हैं। इतना खर्चा इसकी मेंटेनेंस का है जो हमें कहीं से नहीं मिलता। हम खुद से, मतलब ये जो लड़के हैं, ये आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको हम लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त, कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया। और अच्छा टूर्नामेंट इस वक्त विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ स्पॉन्सर्स ये मुमकिन नहीं है। तो पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ मेटामेलन, ये लाहौर का ग्रुप है जो हमारे गांव के चीजियस, ये कोई साहिवाल वालों के लिए कोई मतलब अननोन नहीं है, उनका है इस दफ़ा यूफून। कोरोना पेंट्स ने इस दफ़ा एंट्री डाली है। वाइटल वालों का हमें इस दफ़ा पैगाम मिला कि नेक्स्ट ईयर वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। इसके अलावा जितने हमारे हैं, ये जुगनी सूप और जीवन सिटी, और मतलब अब किन किन के नाम लूँ। इस दफ़ा हमारे पास इतनी ऑफर्स थी लेकिन हमें बहुत लेट परमिशन मिली, इस वजह से हम ना उसको उस लेवल पे नहीं लेके जा सके। लेकिन इसके बावजूद मैं समझूंगा कि आप लोग भी आज ऑब्जर्व करने आए हैं, आप देखेंगे कि ये माइलस्टोन है, ये हमारा टूर्नामेंट माइलस्टोन है। तो मैं सब दोस्तों के लिए, हाँ, एक चीज़ जो बड़ी अहम है, हमारे यहाँ पे जो पिछले सालों से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनमें मलिक मजीद साहब हैं, हमारे यहाँ पे है MM आलम मार्की, वो अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। और मतलब हर बंदे की कोशिश होती है कि वो हमारे साथ मिल के चले, और हम भी किसी के प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं रखते। और मैं मीडिया के तौर से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारा साथ दें। कोटपीठन के मजहबी स्कॉलर मौलाना कादरी खुर्शीद अहमद रज़ा को पाकिस्तान जमाते अहले सुन्नत की जानिब से सूबा पंजाब का नायब नाज़िम में आला मुकर्रर होने पर सहाफ़ियों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, तफसील बताएंगे मोहम्मद अफजल फरीद। जी अफजल फरीदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फरीद के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि कोटमीठन से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा मौलाना कारी खुर्शीद अहमद रज़ा साहब को पाकिस्तान जमात अहले सुन्नत की जानिब से सूबा पंजाब का नायब नाज़िम आला मुकर्रर किया गया है। कोटमीठन प्रेस क्लब के अहदेदारों की जानिब से मुबारकबाद दी गई है, उनके ऑफिस में आमद हुई है। हमारे साथ कारी खुर्शीद अहमद रज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्पेशल टीवी की जानिब से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का अज़म रखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब कोटमीठन का शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस सरदार शमशाद खान साहब, जो सदर हैं प्रेस क्लब के, मलिक आशिफ फरीदी साहब, मोहम्मद अफजल फरीदी साहब, मोहम्मद रियाज खान मसोई साहब। जी, मैं सबसे पहले अपने कायदीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना जिम्मेदारी देने पर एतमाद किया, क्योंकि पहले मैं जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म पर ज़िली खिदमत करता रहा हूँ।
तो उन्होंने ये वफादारी और कारकर्दगी के सिला में उन्होंने मुझ पर ये भारी जिम्मेदारी डाली है, तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस पर पूरे उतरने की तौफीक अता फरमाए। आपने पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। सदर प्रेस क्लब शमशाद अहमद साहब भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं? सबसे पहले तो मैं कारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ पूरे प्रेस क्लब की तरफ से, और ये हमारे शहर का भी एक एजाज़ है कि कारी साहब सूबाई सतह पर एक आला ओहदे पर फायज किए गए हैं। ये कारी साहब का प्यार और मोहब्बत है, ये हर एक तबका से प्यार और मोहब्बत करते हैं और फिर उनको हर तबका से प्यार और मोहब्बत मिलता है। मैं प्रेस क्लब कोट मिठन की तरफ से उनको मुबारकबाद करता हूँ। आज कोट मिठन प्रेस क्लब की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से बखूबी तरीके से निभाने का अज़म भी किया गया है कारी खुर्शीद अहमद की जानिब से भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल फरीदी हमें अपडेट कर रहे थे। समुद्री मीडिया प्रेस क्लब के इलेक्शन बराए साल 2026 का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी जनरल वकास जमील बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मीडिया प्रेस क्लब समुंदरी एक तरफा अपने तौर पर बाडी बना लेंगे, कोई सदर सैकटरी का इंतखाब नहीं करते, कोई इलेक्शन नहीं कराते, इन्होंने अपनी ज़्यादादारी बनाई है। जिहदे साडे दोस्तां ने भी मशवरा दिता, असीं सारिआं ने कीता कि असीं एक सालाना इलेक्शन अनाउंस करांगे। 2026 अगे आ रहा, 2026 के सिलसिले से जिहड़ा बकायदा असीं इलेक्शन की अनाउंसमेंट की थी, बकायदा उहदे विच वोटिंग करवाई। तमाम दोस्तों ने जिन्होंने मकसद वोटिंग के जरिए साडा प्रॉपर जिहड़ा वा जनरल सैकटरी और सदर का इंतखाब किया गया, और जिहड़े दोस्त तमाम आए ने और जिन्होंने वोटिंग कास्ट की है और जिन्होंने सिलेक्शन की है, उन्होंने तमाम दोस्तों का दिल की मुहब्बत तो बेहद शुक्रिया। और अगर किसी दोस्त का कोई छाप का कोई गिला शिकवा कोई इतराज तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाले टाइम में वो भी दूर किया जाए और उन्होंने इंशाल्लाह खुश रखा जाए, ना रखा जाए और उन्होंने वो भी गिला शिकवा दूर किया जाएगा इंशाल्लाह। सियालकोट के थाना मुरादपुर पुलिस ने हामदू गैंग के सरगना समेत 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, रिक्शा और 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान से 7 कीमती मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया। हामदू गैंग शहरियों से असले के जोर पर मोटरसाइकिलें और नकदी छीनने में मुलविस थे। मुलजिमान ने दर्जनों वारदातों का इतराफ भी कर लिया है। थाना मलका हंस पुलिस ने बदनामे ज़माना मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11.5 किलो चरस पकड़ ली। मंशियात फरोश नौजवान नस्ल को नशे की लानत में मुब्तला कर रहा था। SHO थाना सिविल लाइन ने फराज और फराजी गैंग के सरगना समेत 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियती माल मसरूका भी बरामद कर लिया। दीना में विंटर स्पोर्ट्स गाला 2025 के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में ज़िला भर से 32 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर रेलवे और ख़जाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों और खेलों के बेहतरीन मौक़े फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खेलों के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ़ भी की गई है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म के योम विलादत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर जनूबी पंजाब गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट शेख रमज़ान नदीम थे। तकरीब की सदारत डिवीजनल सदर मोहम्मद इरफान ने की। शेख रमज़ान नदीम ने कहा कि हमें बानी पाकिस्तान के अक़वाल पर अमल करके दुनिया को मात देनी होगी। पाक फौज ने पाकिस्तान का नाम रोशन करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। आखिर में केक भी काटा गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 18वीं योम शहादत के हवाले से सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। SSP लाड़काना की जानिब से गढ़ी खुदा बख्श, नोडेरो और इससे मुलिका इलाकों में पुलिस सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। SSP लाड़काना ने बताया कि 8500 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जनाब आला हाज़िर
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में पार्टी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातह खानी भी की गई। उनके मज़ार पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश। तिब्बी के कबायली और समाजी रहनुमा की चर्च आमद पर मसीही बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। मसीही बरादरी के अफराद ने सरदार ज़ादा मीर दिनार खान डोमकी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तकरीब में मसीही बरादरी के नुमाइंदों ने मेहमान ग्रामी को रिवायती सिंधी अजरक भी पहनाए। उन्होंने कहा कि अक़लियती बरादरी पाकिस्तान के माशरे का अहम हिस्सा है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने अक़लियती बरादरी में माली मुआवनत, तालीमी स्कॉलरशिप्स और फंड्स के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब में किया। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सिब्बी में मुनक्किद हुई। सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर, अदीब और प्रोफेसर उज़्मा जॉन ने शिरकत की और मुशायरा भी लूट लिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हर साल आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत मुनक्किद की जाती है। कॉन्फ्रेंस में अंदरूने और बैरून मुल्क से नामवर शख्सियात शिरकत करती हैं। तंजिया से लहजे हैं, काटदार जुमले हैं, वाह गुफ्तगू में तलखी है। तंजिया से लहजे हैं, काटदार जुमले हैं, गुफ्तगू में तलखी है। देखिए तो कहने को मेहरबान मैं भी हूँ, मेहरबान तुम भी हो। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या बात है। देखिए तो कहने को मेहरबान मैं भी हूँ, मेहरबान तुम भी हो। और कौन कितना सच्चा था, किसने साथ छोड़ा था, कौन दिल से खेला था। क्या बात है, वाह वाह। कौन कितना सच्चा था, कौन दिल से खेला था, किसने साथ छोड़ा था। कुछ नहीं है कहने को, बेजुबान मैं भी हूँ, बेजुबान तुम भी हो। वाह 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 भाई वाह वाह उस्मी भाई वाह। बेजुबान मैं भी हूँ, बेजुबान तुम भी हो। वाह वाह। सिंधी रहनुमा GM सैयद की साहबजादी की 29वीं बरसी पर ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में पार्टी के रहनुमाओं, ख़वातीन और मर्द कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में जेजी दरशवार सैयद की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर इस अज़म का इजहार किया गया कि जेजी दरशवार सैयद के मिशन को जारी रखा जाएगा। दुरेशवार की आज जो है 29 उसकी बरसी है, तो यहाँ पे प्रोग्राम करने का यही मकसद था कि जी हम सब के लिए एक उत्साह है, एक तसलसल है साईं GM सैयद के घराने का, क्योंकि साईं GM सैयद एक सैयद घराने का रहबर था हमारा। तो उसने अपनी वो वाहिद बेटी थी जिसको पढ़ाया, और ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि वो PhD होल्डर सिंध की वाहिद इकलौती जो कहते हैं ना एक औरत थी, वो जीजी दुरेशवार थी। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब सैयद घरानों की बेटियां पढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोटड़ी की अदियों ने, अम्माओं ने ये अपना रोल बहुत अच्छा यहाँ पे अदा किया। सब लेडीज़ यहाँ पे शिरकत करने के लिए आई, और ये जो ज़मीनी खुदा है यहाँ का 20 साल से एक सांप बैठा हुआ, इनको ये हमारा मैसेज जा रहा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम जब सच की राह पे चलने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 ने लाहौर में चेयरमैन लैंड्स रिकॉर्ड अथॉरिटी से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या खास था, तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 तहसील अहमदपुर सियाल जिला जंग इफ्तिखार खान बलोच ने चौधरी गुलाम मोहिउद्दीन के हमरा लाहौर में चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी चौधरी तारिक सुबहानी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में लैंड रिकॉर्ड से मुतल्लिक उमूर, अवामी मसाइल और हुकूमती इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर चौधरी तारिक सुबहानी ने कहा कि वजीर आला पंजाब की
जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई एक बर वक्त और काबिल तहसीन इकदाम है, जिससे अवाम को जमीनों के मामलात में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को भी एक अहम अवामी मंसूबा करार देते हुए कहा कि इसके मुस्बत असरात पूरे सूबे में नजर आ रहे हैं। इफ्तिखार खान बलोच ने चेयरमैन को लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जंग के दरपेश मसाइल, अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात और बाज़ तकनीकी रुकावटों से तफसीली तौर पर आगाह करते हुए मुतालबा किया कि जिला जंग में लैंड रिकॉर्ड के निज़ाम को मजीद मुअस्सर और अवाम दोस्त बनाया जाए। चौधरी तारिक सुबहानी ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की जाएंगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। सरगोदा में फैसल नज़ीर चीमा ने बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद टाउन का चार्ज संभाल लिया है। इस वाले से मजीद तफसील बताएंगे हारून सरफराज। जी हारून, बताइए। जी बिल्कुल, सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन जिला सरगोदा जनरल सेक्रेटरी मुतहदा महाज उस्ताजा जिला सरगोदा जनाब फजल नज़ीर चीमा साहब ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद टाउन सरगोदा का चार्ज संभाल लिया। इस पुरमसरत मौका पर मुतहदा महाज उस्ताजा जिला सरगोदा के ओहदेदारान और उस्ताजा रहनुमाओं की एक कसीर तादाद गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद टाउन का दौरा किया। वफ्द ने फैसल नज़ीर चीमा साहब को नई जिम्मेदारियां संभालने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करके अपनी मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। उस्ताजा रहनुमाओं में चौधरी इश्तियाक अहमद चीमा साहब, हाफिज उस्मान खान साहब, डॉक्टर बासिर शबान भट्टी साहब, मलक फैसल महमूद अवान साहब, राना एहसानुल्लाह, मलक अहमद बसरा साहब, जाहिद महमूद रांझा साहब, सईद अजहर हुसैन शराजी साहब, फरूक अशरफ साहब और दीगर उस्ताजा रहनुमा भी शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया हारून सरफराज, हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। पतोखी में आवारा कुत्ते ने 3 साला बच्चे पर हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि राहगीरों ने बमुश्किल कुत्ते से बच्चे को छुड़वाया तो बच्चा शदीद जख्मी हो चुका था। बच्चा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोखी में जेर इलाज है। असिस्टेंट कमिश्नर ने निजी सोसाइटी के चौकीदार के खिलाफ लापरवाही बरतने पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। शहरियों का मुतालिबा है कि शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है, इंतजामिया फौरी तौर पर कार्रवाई करे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें वकील क्लर्क दफ्तर में मुर्दा पाया गया। तफसीलात के मुताबिक दफ्तर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। रेस्क्यू टीम ने दरवाज़ा खोलकर लाश निकाली, जिस पर पता चला कि मौत 8 से 10 घंटे कबल हुई। मतूफ़ी की लाश अकड़ चुकी थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। कोटरी में क्रिसमस के रोज़ पर वक़ार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मसीही बिरादरी के अफराद और पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग हैदराबाद की इशरत हसन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान क्रिसमस का केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती, अमन व अमान और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने साबिक सूबाई वज़ीर मकबूल मोहम्मद शाल के इंतकाल पर उनके फर्जंद सैयद ज़ीशान शाह और कामिल शाह से ताज़ियत की। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि मरहूम अजीम इंसान थे, उनको सलाम पेश करता हूँ। हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। हमारे वक्त के दोस्त और एक अजीम इंसान थे। उसके तरह दोस्त दुनिया में बड़े कम होते हैं और हम सब उसके गम और ये तकलीफ में सब शामिल है। और उनके बेटे जो है वो हमारे इंशाल्लाह भतीजे है। हमारा इस घर में आना जाना हमारा फिर भी रहेगा। पहले भी हम हमेशा आते रहे, हर वक्त उनके पास आते रहे, या आज इसके बाद भी हमारा आना जाना रहेगा। लेकिन उस अजीम इंसान को सलूट हम पेश करते हैं आज के दिन पे। आज वो हम में से नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत ले जाएगा उनको। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 280 किलो से जायद मुर्दा मुर्गियां और 2 मन से जायद नाकिस गोश्त तलब कर दिया। नाकिस गोश्त बरामद होने पर बकर मंडी में वाक़िया मीट शॉप को बंद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने टोलिंटन मार्केट और बकर मंडी में ऑपरेशन किया। 2 दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि 10 दुकानदारों को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहसील रावी का दौरा किया। डिप्टी चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर रावी, LWMC और वासा उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शाहदरा, सुई गैस चौक, मोहम्मदी मोहल्ला, होकर पेंड और मोहलिका आबादियों का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों, सफाई और सीवरेज के इंतजाम का भी जायजा लिया है।
क्लीन लाहौर मिशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने बागबानपुरा का दौरा किया। इस दौरे में क्या खास था, इस हवाले से तफसील बताएंगे सैयद हैदर शाह। जी हैदर शाह बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद आमर भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर ने सफाई की नाकस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए LWMC हकाम को बेहतरी लाने का हुक्म दिया। LWMC हकाम को गलियों से मलबा फौरी हटाने, वासा को मेन होल्स, कवर्स और सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने गैर कानूनी तामीरात पर सख्त कार्रवाई, महकमों को बाहमी राब्ता बढ़ाने और तामीराती कामों के दौरान तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत की। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा कहना कि शहरियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक मंसूबों के मेयार और बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। रेगुलेशन स्क्वाड ने मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी, मुल्तान रोड और शहर की अहम मार्केट्स में ऑपरेशन किया और शहर की मुख्तलिफ सड़कों और तिजारती मनाक़िस को क्लियर करवाया। दौरान ऑपरेशन 1190 तजावुज़ात और 3460 गैर कानूनी तशहीरी मवाद भी उतारे गए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।